Hello everyone. Welcome you all in online teaching learning classes. Myself, Ms. Mranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on topic 2.3, that is specific gravity. Now the vision of the program to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Now the mission of the department M1 imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2 to develop social and environmental responsible civil engineers. M3 effective implementation of teaching learning process to benefit student. Now the course outcome interpret the physical properties of soil related to the given construction activity. Program outcome is that PO1, PO2, PO4, PO5, PO6 and PO7. Now, the unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to interpret Atterberg limit of consistency for the given data. First of all, we will discuss about specific gravity. Specific gravity is defined as the ratio of mass of a given volume of solid to the mass of an equal volume of water. ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? रेशियो ऑफ मास ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. इट इज एक्सप्रेस एज G equals to gamma S divided by gamma W, where gamma S equals to density of soil solid, gamma W equals to density of soil water. The knowledge of specific gravity is needed in a calculation of soil properties like void ratio. अगर हमें knowledge है specific gravity का वो क्यों ज़रूरी होता है? वो कैलकुलेशन करने के लिए ज़रूरी होता है सॉइल प्रॉपर्टी, लाइक अ वॉइड रेशो कैलकुलेट करने के लिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एक्सेट्रा. द स्पेसिफिक ग्रेविटी लाइज बिटवीन 2.65 टू 2.85. स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज कितनी होनी चाहिए? 2.65 टू 2.85. Soil having organic matter and porous particle may have specific gravity value below 2, and soil having heavy substance may have value above 3. अगर soil having organic matter and porous particle, अगर soil में organic matter है, porous particle है, तो उसकी specific gravity की value होगी below 2 के नीचे. And soil having heavy substances may have value above 3. अगर heavy substance है soil में तो specific gravity की जो value है वो 3 के above होगी. अब आप लोग ये टेबल में देख रहे हैं soil के टाइप, gravel, sand, silty. पहला है gravel, second sand, silty sand, silt, inorganic clay. Then gravel की रेंज 2.65 to 2.68, sand 2.65 to 2.68, same. Silty sand 2.66 to 2.70, silt 2.66 to 2.70, inorganic clay 2.68 to 2.80. Now determine specific gravity by pycnometer method. अब हम लोग डिटरमाइन करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर मेथड का यूज़ करके. दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल बट इट इज़ मोर सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल. ठीक है, अब ये जो मेथड है वो सुटेबल है सभी सॉइल के लिए, बट फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ये ज़्यादा सुटेबल है. एपरेटस पिक्नोमीटर है, वेइंग बैलेंस है, ओवन है, ISC 4.75 mm एंड ग्लास रॉड. Sample preparation. This soil sample is dried in oven at a temperature of 105 to 110 degree Celsius for a period of 16 to 24 hour. सबसे पहले सॉइल सैंपल लेना है, उसको ओवन में ड्राई करना है 105 to 106 डिग्री में, ठीक है, और 16 to 24 आवर्स तक. देन प्रोसीजर, ड्राई द पिक्नोमीटर एंड वेट द बॉटल W1 ग्राम. सबसे पहले पिक्नोमीटर की बॉटल को ड्राई करना है
और उसका वेट लेना है एम्प्टी वेट, वो है W1 ग्राम। सेकेंड, टेक 200 to 300 ग्राम ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल पासिंग थ्रू 4.75 ml सीवीएम पिक्नोमीटर एंड वेट इट W2 ग्राम। उसके बाद 200 से 300 ग्राम हमें ओवन ड्राइंग सॉइल सैंपल लेना है, पिक्नोमीटर की बॉटल को उसमें फिलअप करना है वो सॉइल, और वो उसका वेट लेना है, वो रहेगा W2 ग्राम। Add water to cover the soil. Shake the pycnometer so that soil becomes wet and is use glass rod to the remove and trap air and take it weight W3 ग्राम। उसके बाद उसमें वाटर ऐड करना है वो सॉइल सैंपल में, और उसका वेट लेना है, वो रहेगा W3 ग्राम। देन क्लीन द पिक्नोमीटर एंड ड्राई इट। अब हमें वो पिक्नोमीटर क्लीन कर देना है और उसको ड्राई करना है। देन फिल द पिक्नोमीटर विथ द वाटर, मतलब फुल ऑफ वाटर इट्स टॉप तक, उसके टॉप तक के हमें फुल ऑफ वाटर फिलअप करना है एंड वेट द पिक्नोमीटर दैट इज W फ्रॉम 4 ग्राम। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना है। पूरा फिलअप कर दिए पिक्नोमीटर, उसमें पूरा वाटर है, अब वो W4 ग्राम हमें लेना है। ठीक है, देन नाउ द कैलकुलेशन। Specific gravity equals to mass of soil solid divided by mass of equivalent volume of water. G equals to W2 minus W1 divided by W2 minus W1 minus W3 minus W4। जो हमने कैलकुलेट करके रखा है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से, वैसे ही हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी में W2 की वैल्यू, W1 की वैल्यू जो हमने वेइंग मशीन से कैलकुलेट करके रखी है उसका वेट, वो पुटअप करना है। ठीक है, देन W1 क्या है? एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर जो हमने निकाला था। W2 मतलब एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल। देन एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल वाटर, ड्राई सॉइल भी रहेगा उसमें, वाटर भी रहेगा, वो है W3। एंड W4 इज एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर। वेरी सिंपल। Then next is a consistency of soil. Consistency of soil may be defined as the resistance to deformation or fineness of fine grain soil. Resistance to deformation or fineness of grain soil. It is specially used for fine grain soil. Consistency of soil जो है वो हम specially use करते हैं fine grain soil के लिए. Consistency limit may be defined as the moisture content of the soil at a point where it is passes from the one stage to others आर कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी लिमिट मतलब क्या होता है? जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है सॉइल में एट अ पॉइंट वेयर इट इज पासेस फ्रॉम वन स्टेज, एक स्टेज से अनदर स्टेज। देखते हैं कि वन स्टेज में उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है, अनदर स्टेज में उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है। अब हम लोग इन सॉलिड स्टेट देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। सॉलिड स्टेट में उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा विद चेंज इन अ वाटर कंटेंट, अगर हमने चेंज किया भी तो। एज देयर इंक्रीज इन वाटर कंटेंट देयर विल इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर हमने इंक्रीज वाटर कंटेंट कर दिया तो वॉल्यूम उसकी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। डिक्रीज इन वाटर कंटेंट, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी, जैसे कि आप लोग ये फिगर में देख रहे हैं, यहाँ सॉलिड बताया हुआ है, सेमी सॉलिड, उसके बाद प्लास्टिक स्टेट और उसके बाद लिक्विड स्टेट, ये वाटर कंटेंट है। ठीक है, देन और ये है वॉल्यूम। ये है स्टेजेस कंसिस्टेंसी की, सॉलिड, देन सेमी सॉलिड, देन उसका प्लास्टिक स्टेट, देन उसका लिक्विड स्टेट। इन सेमी सॉलिड स्टेट सॉइल मास कैन नॉट बी डिफॉर्म विदाउट क्रैकिंग। सेमी सॉलिड स्टेट है तो सॉइल मास बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होगा विदाउट क्रैकिंग। वेयर एज इन अ प्लास्टिक स्टेट सॉइल मास कैन बी डिफॉर्म। अगर वो प्लास्टिक स्टेट में आता है तो सॉइल मास जो है वो डिफॉर्म भी होता है बट विदाउट क्रैकिंग। इन लिक्विड स्टेट सॉइल मास बिहेव लाइक अ लिक्विड विच हैज़ अ वेरी लेस shear स्ट्रेंथ। बट लिक्विड स्टेट में सॉइल मास बिहेव लाइक अ लिक्विड विच हैज़ अ वेरी लेस shear स्ट्रेंथ, जिसकी shear स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम रहती है लिक्विड स्टेट में। नाउ द समरी ऑफ दिस सेशन हमने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी, देन पूरा प्रोसीजर, उसका कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर मेथड के थ्रू, देन कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, स्टेजेस ऑफ कंसिस्टेंसी। Question asked in MSBT, first define specific gravity. This is your assignment also. Determine specific gravity by pycnometer method. What do you mean by consistency of soil?
थैंक यू।